हेलो एंड वेलकम टू IGCSE सुदर्शन स्टूडियो। आज एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पर। इंडिया लॉन्च्ड इट्स बिगेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म आफ्टर 34 ईयर्स और इसके बीच में कई एजुकेशन पॉलिसीज भी चेंज हुए। But here is the uncomfortable truth, and that is 95% children go to school, yet nearly half can't even read properly. Yani a 8th grade student cannot read grade 4 or 5 textbook. Imagine that. That's a pathetic condition of reading, writing and even arithmetic. Second point is your policies are promised in India on global standards, but classroom lacks basic teacher. And you know this, that's a condition of Indian education. Most of the teachers are either on ad hoc contract basis or they are on temporary basis. It's the same thing. No one wants to hire a permanent teacher. Ayaram Gayaram kind of teaching is going on in almost 92% of schools in India. Private though we will leave, but private also have the same condition. Guest lecture we call them. Name, the tag will be different, but the condition is the same. So the big question is NEP 2020 a revolution or just a beautiful written illusion or a beautifully written illusion? So we have to ask this question to ourselves. Is it really a revolution in education or just a gimmick like every government does with our common people, so called आम पार्टी या आम जनता के साथ जो होता है बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका। Okay, so let's welcome to the IGCSE Sudarshan Studio, where we don't talk about education but we expose the reality. Today we are breaking down the real drawbacks of India's new education policy 2020 with data, some research, some global comparison in this PPT or on this whiteboard. Okay, and really we are going to dig into the detailed practice of this NEP, how it was introduced, how many volunteers were there and how many teachers were involved. Basically, were they from the rural area or from the, like what we say, a city urban area. Okay, so let's see this one part. First thing, implementation. Okay, let's check out the first one. The first point is here, implementation gap, policy versus ground reality. If you are in village or if you're listening or if you're watching this video from the village, you know the ground reality of education. Most of the education will lack infrastructure. We will go that everything in detail, okay? But the thing is, the schools are there on the ground for the namesake. It is only for the namesake for the kids, but most of the time जो खाना आता है, like what we say midday meal, it is only for that reality purpose, and that too it is going to either the principal's house or teacher's house. But ये जो चीज़ें होती हैं midday meal की, जो खाना ये सब उनके घरों पे जाता है, ना कि बच्चों के पेट में। ऐसा ही होता है। और अगर पेट में कुछ जा रहा है तो कंकर, उनके साथ कुछ चावल और पानी वाली दाल या दाल वाली पानी के जैसी कोई तो चीज़ उनके पेट में चली जाती है। दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी और इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। एक्सपर्ट सेज NEP इज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। हम एक पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम है, आपको बताता हूँ मैं, इस पेपर जो इसमें रियलिटी जो बात बताई गई है आप भी देख सकते हैं, सेज जर्नल। मैं लिंक दे दूंगा इस लिंक पर, ठीक है? आपको लिंक मिल जाएगा इस एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। जो जर्नल है यहाँ पे सेज जर्नल, उसमें आपको ये बारे में सारी पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट फिर भी मैंने अपनी तरीके से कुछ रियलिटी चेक्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता
चले तो चलते हैं इंडिया के कुछ कब जाएंगे हम 1986 में चले या 1964 में लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले तो, ठीक है। नाउ इन इंडिया द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो बोरियत होगी इसके लिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो ज़रा ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं एंड लेट्स से राइटिंग पार्ट। सो जस्ट अ सेकेंड, टूल्स लगाते हैं और फिर यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट क्या है, ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे कुछ कंटेंट है, अब दिखाता हूँ आपको, ठीक है। नाउ इन इंडिया ठीक है, बेसिकली क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। बेस्ड अपॉन रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी गई थी। और इस पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहली जो पॉलिसी बनी थी वो बनी थी 1964 से लेके 1966 के बीच में, जिसे हम कहते हैं कोठारी कमीशन। आपने सुना होगा, अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 1964-66 का जो टाइम था, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, यानी कि फर्स्ट एनईपी पॉलिसी बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एनईपी पॉलिसी जो बनी थी वो बनी थी 1986 में। फिर बाद में जो द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी वाज ओके इन 1992 एंड द फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी was inaugurated on 29th July 2020, right? So this is the fourth policy at present। 29th जुलाई पे ये जो बनी हुई पारित किया गया या पास किया गया आप कहिए, तो 2020 में that was given, right? Now the chairperson for this one was Dr. कस्तूरी अंगन, ठीक है, कस्तूरी अंगन, who was also a chairperson of ISRO and a committee member of this NEP 2020। and by the way ये 25 अप्रैल को यानी कि पिछले साल 2025 को इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो 2020 में ये चेयरपर्सन थे, कमिटी मेंबर थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 20 का, और 25 अप्रैल 2025 में इनका डेथ हो गया। बट सबसे ज़रूरी बात है कि ये है चेयरपर्सन ऑफ इसरो, यानी कि साइंस एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, इसका जो बेसिक कंटेंट जो था वो था साइंस के ऊपर और आर्ट्स एंड सोशल वर्क या वोकेशनल वर्क कह लीजिए। दैट वाज द बेसिक फ्रेमवर्क। अब मैं आगे बताता हूँ इसके और क्या क्या पहलू थे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी ये है डिज़ाइन टू ओके सो NEP का जो डिज़ाइन है ना वो है, आप ये समझिए आसानी से, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ाइन इसके लिए किया गया था ताकि हम SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, that was by the UN basically here, okay, sustainable development गोल को मद्देनजर रखते हुए ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, विच इज बेस्ड अपॉन द यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब ये यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें कैसी होगी या क्या करवाएगा हमारे आगे फ्यूचर के लिए, ये आपको बहुत आगे पता चल जाएगा। अब ये एजुकेशन पॉलिसी की जो हिस्ट्री है थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पॉलिसी कब बनी
कैसे शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो इस पॉलिसी में यानी एनईपी की पॉलिसी में, ठीक है, टोटल मेंबर्स जो थे 380, 380 पार्टिसिपेंट्स वर देयर। Okay, out of this 380 participants, 92 were basically teachers, 256 were students, and 12 were subject expert. ठीक है, तो ये टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे इस एग्जाम पॉलिसी को बनाने के लिए 380 पार्टिसिपेंट्स, 92 टीचर्स, मेल एंड फीमेल वर इक्वल ईयर, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स में मेल एंड फीमेल वर इक्वल, एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट वर साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स वॉज इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें इसमें थी। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप पूरा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, पूरी पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट स्टाइल एजुकेशनल जो साइट है वहाँ पे भी जाके इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो ये जो थी पॉलिसी के कुछ पार्टिसिपेंट्स, कितने 380, so 380 members were there, 92 were teachers, 256 students and 12 subject expert. Now remember the population of India is around 1.4 billion, जिसमें से 7 या 6 CR is basically student. अब उसमें से सिर्फ 380. Remember the policy what they are implementing, and they are considering only this much amount of like sample. So sample is very small. Based on this small sample, a huge policy has been just bombarded on Gen Z के ऊपर बोल लीजिए। ठीक है, अब इस पॉलिसी में 40 कॉलेजेस वर इंक्लूडेड। बट आपको हैरानी होगी, ये जो 40 कॉलेजेस हैं कहाँ से लिए गए? कर्नाटका से। और ये कर्नाटका से कौन से 10-10 कॉलेजेस हर इसमें से। पहले तो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, 10 कॉलेजेस फ्रॉम मैंगलोर। फिर बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, MYS, ओके, फिर आया यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, और लास्ट में है यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर 10-10 कॉलेजेस, ठीक है, 10, इनके अंदर जो भी 10 कॉलेजेस आते हैं उस कॉलेजेस को सैंपल बना के इन्होंने NEP 2020 हम सब पे लाद दिया। ठीक है, जो कि 256 स्टूडेंट्स बैठते हैं, इसमें 92 टीचर्स आते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट 12 है। तो बेसिकली यहाँ से एक रॉ डेटा बनाया गया जो कि बहुत कम डेटा है ना। बट अब इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड सेक्टर भी इंक्लूडेड थे। अब मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ ताकि ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है बाय द वे, ठीक है, बट स्टिल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं इसकी फर्स्ट पॉलिसी, जो ड्रॉबैक है इसके फर्स्ट का, इम्प्लीमेंटेशन गैप पॉलिसी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। नाउ एक्सपर्ट सेज दैट NEP इज टू एब्स्ट्रैक्ट, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। टीचर्स नहीं अवेलेबल है, वाटर सैनिटेशन इश्यूज हैं, बुक, टेक्स्ट बुक, गांव की पढ़ाई यानी रूरल एरिया की पढ़ाई कम्प्लीटली अलग है। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस NEP। मेजर इश्यूज लैक ऑफ मॉनिटरिंग, coordination and infrastructure. Remember this, India doesn't suffer from lack of ideas, but it suffers from its execution, and every time it happens in each and everywhere. People go on meeting and meeting and meeting, but the problem is the meeting never gets ended and the solution is as it is again discussed in the meeting. So meeting is forever, but the execution of the problem or execution of the solution is a big failure. Policies are made in Delhi, but classrooms in village don't even have proper benches. चाहे वो आर्मी स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो A क्लास AC रूम वाले क्लासेस क्यों ना हो, there are problems in each and every education sector, private, government or semi-government. Every school, okay, but the policies are made in AC rooms, but the classroom in village do not have basic necessity of washroom or electricity or even a digital board. The reality check is India has 1.5 million schools. Implementing one uniform policy is extremely complex. And if we compare this with Finland, the topmost
I think the country with the education policies focuses on small scale decentralized reforms, whereas India tries mass scale reform without infrastructure readiness. They do not have that infrastructure, neither they include the what we say public sector into it. Okay, we have stakeholders, even they should include into this. They have private teachers who can give basic ideas about this implementation or the policy, but as you know, very few members or very few participants were there from the private sector. Okay, moving to the next one, funding crisis. The second problem is the big dream but the low budget. As we know, the recommended GDP to spend on education was 6%. But do you know how much we spend? We spend actually 2. I saw that yesterday on Times of India, like paper पे मैंने कहीं पे देखा था कि 2.1 is the GDP. What I should say, India spends 2.1 on their education policy. So basically इतनी कम education sector में पैसा लगाया जाता है कि आप समझ नहीं सकते 2.1 इस कहाँ पर है और 6 कहाँ पर है. Even बांग्लादेश, नेपाल is having better GDP for education than India. Yes, okay, please check out that on the Google. हमारे इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी पे खर्चा बहुत ही कम है. ये ऐसी बात हो गई कि भाई हम चाहते हैं कि हाका नूडल्स खाएं, बट हमारे जेब में सिर्फ 1 ही रुपया है और वो 1 रुपये या 2 रुपये से हम चाहते हैं कि वो क्या बोलते हैं टॉप मोस्ट क्लास की नूडल्स या टॉप मोस्ट क्लास का कुछ खा सकें. दैट्स द रियलिटी. छेद हमारे पॉकेट में है, बट हमें दिखाना है कि वी आर द विश्व गुरु इन द एजुकेशन, बट द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट. पॉलिसीज लैक क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिफॉर्म्स. अब हमें पता है कि जब पैसा ही नहीं है तो प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती, और गवर्नमेंट स्कूल्स तो इतने क्लोज हो चुके हैं गए 10-12 साल में कि अब प्राइवेट सेक्टर्स की तो पूरी चांदी ही चांदी है. इन वन और अदर वे दे आर जस्ट मेकिंग द गवर्नमेंट टू नॉट वर्क. इफ द गवर्नमेंट डू नॉट गेट फंड, टीचर्स, proper sanitation, proper education, then the problem is the schools will not run. Student will not go for just midday meal. और वहाँ से जब बच्चे निकल जाएंगे तो वो स्कूल अल्टीमेटली क्लोज बंद हो जाएगा और वहाँ की ज़मीन जो है प्राइवेट सेक्टर्स को चली जाएगी या बिजनेसमैन को चली जाएगी, जहाँ पे वो अपनी कंपनी या अपना किसी भी तरह का कूड़ा कचरा डालने का काम कर सकता है. एंड दैट इज़ वॉट द बिग प्रॉब्लम इज. गवर्नमेंट स्कूल बंद, प्राइवेट सेक्टर की चांदी. चांदी मत बोलिए, उसका तो सोना ही सोना हो जाएगा. एंड एवरीवन विल बी मूविंग टू द प्राइवेट सेक्टर, वेयर द प्राइवेट सेक्टर कैन आस्क अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी राइट फ्रॉम योर KG to PG, and they have that power. Okay, you can't build Harvard level education with the budget of 2.1 GDP of a developing nation. The reality check of this is government school lack basic structure, digital tools, labs and teacher salary and training. आज भी टीचर्स वहाँ पे बेसिक, आपको पता होगा वहाँ पे इंग्लिश का बड़ा इशू होता है, ट्रेनिंग के बहुत इश्यूज हैं. कोई टीचर्स अपने भाई, भतीजे, चाचा, नाना, आंटी, बहना सबको लगा देते हैं और खुद वो टीचर नदारद रहता है. दैट इज़ द रियलिटी इन द विलेजेस एंड मोस्ट ऑफ द टाउन्स. द प्राइवेट तो नहीं होता, लेकिन परमानेंट टीचर्स गायब रहते हैं, उसके जगह पे उनके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर्स पे काम करते हैं. एंड दैट्स हाउ वी कंपेयर दिस थिंग विद द अदर स्कूल्स इन USA और Finland. USA spends around 5 to 6 of their GDP. Finland invests heavily around 7.1 on their public schooling education, where the education is actually free. Okay, in India still we are struggling with the basic infrastructure gaps. चौक तक नहीं है यार. Still we are learning with the blackboard kind of thing. आज भी दीवारों पे पेंट किया जाता है, एक चौक पीस लेके बस शुरू हो जाती है. मतलब पहले भी काले पत्थरों के ऊपर लकीरें खींची जाती थी और आज भी वही हाल है. आज़ादी के क्या बोलते हैं 75 उत्सव के बाद भी वही काली दीवार और वही सफ़ेद चौक और वही टीचर आज भी स्ट्रगल कर रहा है. प्राइवेट तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट भी.
चलिए तीसरी पॉलिसी की तरफ जो प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे है टीचर्स क्राइसिस। बैकबोन इज वीक। वीक मतलब चरमरा सी गई है और कुछ नहीं। इंडिया फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी और क्वालिफाइड फैकल्टी स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो गांव में तो सबसे मैं कहता हूँ ना कि क्वालिफाइड टीचर्स बिल्कुल है ही नहीं। वहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं जहाँ पे इंग्लिश है, इवन लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स या खुद नदारद वाले टीचर, मिस्टर इंडिया वाले टीचर्स दिखाई देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो कि पूरे गायब होते हैं, या गायब ही कहिए, उनके जगह पे उनके ही जगह पे कोई और टीचर पीरियड बेसिस पे आ जाते हैं। एंड लैक ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग इज ऑल्सो देयर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रिलेक्टेंट टू गो फॉर द चेंज। दे से दैट कि भाई हमने इतना सब कुछ सीख लिया, 40-45 साल से पढ़ा रहे, अब नया सीखने की क्या ज़रूरत है। And that's the thing is government changed curriculum but forgot to upgrade the teachers beforehand. Teachers are expected to teach multidisciplinary subject. Like for myself, I was teaching mathematics, science as well as bio and environmental management. One teacher has to go with multidisciplinary subject. Along with that, most of the private schools में भी आपको पता चल जाएगा कि एक टीचर बहुत सारे काम करता है। सुबह अटेंडेंस लेता है, पेरेंट्स को कॉल करता है, कौन एब्सेंट हुआ, कौन प्रेजेंट हुआ, बच्चों के फ़ोटो लेना, उनके व्हाट्सएप के पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे अपलोड करना, स्कूल के ईमेल आईडीज़ पर, स्कूल के पोर्टल पर अपलोड करना, सोशल मीडिया चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यहाँ तक कि टिकटॉक, जो जहाँ पे सोशल मीडिया हो वहाँ पे स्कूल की पब्लिसिटी, बच्चों की पब्लिसिटी, बच्चों और पेरेंट्स को अपडेट करना, स्कूल में बच्चे ने खाना खाया, वो पानी पिया, पॉटी किया, सुसु किया, सब कुछ अपडेट करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा वो बाकी सारे काम करता है। यूज डिजिटल टूल्स। अरे यार, ये आज भी टीचर्स को नहीं आते, बहुत सारे टीचर्स को नहीं आता डिजिटल टूल्स के बारे में। टीवी तो लगा दिया लेकिन वहाँ पे कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। एंड फोकस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग तो बहुत दूर की बात है, टीचर्स अब तक अपग्रेड नहीं हो पाए हैं या इनको अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं दी है कि स्किल बेस्ड लर्निंग होती क्या है। ठीक है, सो द गवर्नमेंट नीड टू अपग्रेड द टीचर विद द मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। वो सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा अपने आप, बट मेनी टीचर्स स्टिल फॉलो रूट लर्निंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल, Finland teachers require a master degree or it's an highly respected profession, whereas in India में टीचिंग जॉब एक मजबूरी का जॉब है। भले ही आप उसको नोबल प्रोफेशन बोल दीजिए, दैट इज ओनली अ शुगर कोटिंग। ठीक है, नोबल प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है, आप आने वाली पीढ़ी को पढ़ा रहे हो, बट ये सब ऊपरी के शुगर कोटिंग है। रियलिटी इज उनको कोई दूसरा जॉब नहीं मिला, एंड दैट इज द एंड पार्ट ऑफ द करियर। आपको कुछ मिला नहीं इसलिए आप टीचर बन गए, एंड दैट इज द रियलिटी इनसाइड द कोर। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलेंगे, नहीं यार हम ऐसा नहीं कह सकते, कमेंट बॉक्स में आप लिखना शुरू कर दोगे, नहीं हमने तो अपना पैशन फॉलो किया, हम तो आगे वाली भावी पीढ़ी को पढ़ाना चाहते। नहीं, ये सब चीज़ गोलमाल मत करो, ये हर चीज़ का रियलिटी यही है कि हमें कुछ ना मिल रहा था तो हम टीचर बने, हमने पैसे की तरफ देखा तो हम टीचर बने। आने वाली पीढ़ी को हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी जो जेनजी है उसको देख के आप खुद शर्मा जाओगे कि क्या पढ़ाऊँ इन लोगों को। तो दैट्स द रियलिटी। टीचर्स ट्रेनिंग क्वालिटी इज ड्रास्टिकली चेंजिंग, एंड विद दैट period of the time they are working, right from morning 8 o'clock to evening 6 o'clock or 7 o'clock in private sector, I don't think teachers are ready to go under a skill based learning or use of digital tools and other extra hours of this useless work. अब चलते हैं आगे। digital divide, the hidden inequality. Now ground reality is million of students lack इंटरनेट एक्सेस, डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, टैबलेट्स। हाँ, कोविड के टाइम पे हमने दिया, बट दीज लैपटॉप्स आर इन द टीचर्स होम और द प्रिंसिपल्स और देयर फैमिली और रिलेटिव्स। इट इज़ नॉट विद द स्टूडेंट, एंड मोर ओवर द रिचार्ज फैक्टर इज नाउ, you know how much it is. Per month you have to do 300 rupees around recharge to run the data, and in villages you don't have proper electricity, you don't have proper water. What is the use of the data? The first important thing is stomach data. पेट का डेटा अगर होगा तो ही डिवाइस का डेटा जाएगा ना, तो वो पेट भरने के लिए खाना नहीं है तो फिर बाद में डेटा तो दूर की बात है। रूरल एजुकेशन क्राइसिस स्टिल एग्जिस्ट्स डिस्पाइट एनरोलमेंट ग्रोथ।
आप कितना भी बता दीजिए कि मिड डे मील के नाम पे हमने कि बहुत सारे एडमिशन्स लिए, बहुत सारे एडमिशन्स हुए हैं, बट द रियलिटी इज़ वो एडमिशन सिर्फ खाने के लिए हैं। सुबह आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। एनरोलमेंट इज़ ओनली टू शो ऑन द रजिस्टर्स। इसकी रियलिटी यही है कि रजिस्टर्स पे नाम है लेकिन बच्चा नदारद है। प्राइवेट स्कूल्स में भी यही है। आप देख लीजिए, बच्चे का एडमिशन लिया है ज़रूर है लेकिन वो बच्चा गायब है। वो या तो किसी के ट्यूशन में पढ़ रहा है या किसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल में नहीं। लर्निंग लेवल रिमेन लो डिस्पाइट हाई एनरोलमेंट। मोस्ट ऑफ देम आर ड्रॉप आउट्स। दैट इज द रियलिटी। ऑनलाइन लर्निंग साउंड्स futuristic, but for rural India, it is still a dream. COVID-19 has exposed this thing that student attending classes on shared phones, no electricity in some area, and now you know this condition. Those students who were in grade 8 or 9 or 6 or 7, you know how is their IQ now when they are moving after 2-3 years in the next level, that is 9 or 10 grade. We know their level of understanding, level of skill-based learning, or what we say is qualitative kind of education. They still lack the basic reading, writing and arithmetic problems, and that is what the futuristic of India has shown us. Estonian fully digital classrooms we want, but the problem is we do not have basic connectivity of our in our schools. Leave about rural area. In cities also we don't have basic connectivity. Most of the schools are still running on the blackboard, chalk and talk method. Chalk and talk is really dangerous for the teacher. The chalk powder can actually cause cancer, throat cancer. For a prolonged use of the chalk powder can cause that. And remember, the management will never give you any kind of money for such kind of things. चलिए प्रॉब्लम्स अलग से चलते हैं। पहले तो एनईपी पे फोकस करते हैं। तो पांचवा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है एनईपी में वो है प्राइवेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी। नाउ एजुकेशन बिकमिंग इज अ बिजनेस, एंड मैंने पहले भी हमारे IGCSE सुदर्शन स्टूडियो में आपको बताया है कि एजुकेशन इज़ नॉट अ ओल्ड काइंड ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे दीक्षा या दान दी जा रही है। शिक्षा का मतलब अब सिर्फ पैसा है, गांधी है और बिजनेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको एक एजुकेशन दिया, स्पोर्ट्स दिया। होलिस्टिक काइंड ऑफ चीज़ होती नहीं है कोई भी, ये एक गिमिक है, एक ढोंग है, एक दिखावा है। दैट्स ऑल। एजुकेशन इज जस्ट अ बिजनेस. NEP may promote the commercialization of education, risk of fee hikes and inequality. आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, हैदराबाद पब्लिक स्कूल was actually closed for one day because parents were, वो जो क्या कर रहे थे, गेट के बाहर धरना दे रहे थे बिकॉज ऑफ द फी हाइक। 1%, 10% इंक्रीज हो गया, 15% इंक्रीज हो गया। बट अगर गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते चले गए तो प्राइवेट स्कूल तो फीस बढ़ाएंगे बिकॉज दे नो दैट the parents do not have any choice. गवर्नमेंट बंद, आप अपने स्टेटस के नीचे तो जाके पढ़ाएंगे नहीं, तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। और प्राइवेट स्कूल्स तो चड्डी बनियान से लेके किताबों तक का पैसा निकाल लेती है। पेरेंट्स के खून में से DNA तक निकाल के वो पैसा निकाल सकती है। दैट इज वॉट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्कूल इज। दे कैन एक्चुअली सक द ब्लड फ्रॉम द पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, हार्ट के अंदर या नर्व्स के अंदर में से। पैसा कमाना प्राइवेट लोग जानते हैं, कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ट्यूशन के नाम पे, जूते के नाम पे, बनियान के नाम पे, यहाँ तक कि शू के लेस से लेके इरेजर तक के इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। एंड दैट्स द रियलिटी. ओके, एजुकेशन इज स्लोली शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू अ बिजनेस मॉडल. एंड द रियलिटी इज प्राइवेट स्कूल्स आर ग्रोइंग वेरी फास्टर दैन द गवर्नमेंट स्कूल्स. जहाँ एक साल में करीबन 1200 स्कूल्स बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट में, उतनी ही डबल अमाउंट में प्राइवेट स्कूल्स ओपन हुए हैं. सोचिए, 1200 स्कूल बंद हुए साल में और 3000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स इंडिया में ओपन हो गए हैं. Poor students are pushed out of quality education, and that is what happens is most of the students are dropping out because of the high fee. If you compare the same thing with the Finland, where the education is free, almost no private schools are there, and equal education for all. Once upon a time in India, there was KG to PG was a free education, but ये सिर्फ books, किताबों में और डिस्नी वर्ल्ड के एलिस इन वंडरलैंड में रह गई. इसके बाद इसके ऊपर कभी डिस्कशन हुआ नहीं और ये पॉलिसी ऐसे ही बंद होके पता नहीं कहीं मेरे ख्याल से
हो गई। ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर एजुकेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी, इमोशनली but risky policy. Now teaching in the mother tongue till grade 5 is okay, ठीक है, but the problem is lack of teachers in regional language. Most of the teachers like Marathi, Telugu, Tamil or Gujarati or take Bengali, these regional languages teachers who are like well qualified, proper training are lacking. Higher education and job still dominated by इंग्लिश। अगर आप पढ़ भी लेंगे ये लैंग्वेजेस को, बट द प्रॉब्लम इज इसके आगे इसका फ्यूचर क्या है। हायर एजुकेशन 11th एंड 12th में, मुझे याद है बनारस या शायद से वाराणसी के टाइम पे, वाराणसी के साइड में 11th एंड 12th में हिंदी लाया गया था। इमेजिन, साइंस यानी विज्ञान को हिंदी में लाया गया, यूनिवर्सिटी लेवल तक हिंदी में विज्ञान को लाया गया, बट द प्रॉब्लम इज वहाँ पर एक स्टूडेंट का भी एडमिशन नहीं था। हिंदी विज्ञान क्षेत्र में एक भी एडमिशन नहीं हुआ। द रीजन इज इन हायर एजुकेशन देयर इज नो जॉब्स इन द रीजनल लैंग्वेज इन दैट सब्जेक्ट। तो फिर बच्चा पढ़ेगा क्यों? एंड रादर देन दैट पुटिंग प्रेशर ऑन द लैंग्वेज, इट्स बेटर इंपॉर्टेंट टू कीप द लैंग्वेज विथ लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड विद द लिटरेचर पार्ट। क्योंकि आगे जब फ्यूचर नहीं तो फिर मुझे समझ में नहीं आता लैंग्वेज को क्यों पुश करना है इतना। लैंग्वेज कैन एम्पावर आइडेंटिटी बट लिमिट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट्स द कंपैरिजन हियर। चाइना स्ट्रॉन्ग नेटिव लैंग्वेज प्लस इंग्लिश इंटीग्रेशन। आपने अगर चाइनास के वीडियोस, जापान के वीडियोस देखे होंगे तो ग्रेड 3 से वे अपने जापानीज सब्जेक्ट या चाइनीज सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करते हैं विथ स्किल डेवलपमेंट, बट इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करते हैं वो 5th ग्रेड से। हम यहाँ पे 5th ग्रेड LKG UKG से ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मदर टंग तो है ही नहीं, right? That's the risk of actually education in India. Risk of creating language based inequality is there, where a student from the North India, when he लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, आर्मी हो गया, नेवी हो गए, जब वो नॉर्थ से साउथ में आते हैं तो उनको हिंदी भी उसके बच्चे को पढ़नी पड़ती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कर्नाटक, कन्नड़, जो भाषा जहाँ पे है वो भी पढ़नी पड़ती है। दैट इज़ सो समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज ही डजंट और शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फ्यूचर आफ्टर 3 years। वो किसी और स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे एंड अगेन द न्यू लैंग्वेज, न्यू प्रॉब्लम्स विल अराइज। Okay, moving to the 7th one here, multiple exit system, flexibility or dropout trap. Now the policy is exit after 1, 2 or 3 years. आप यानी कि ग्रेजुएशन 10th लेवल 12th के बाद कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड में लीव अर्ली बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज ऑफ द फी और बिकॉज ऑफ the important thing is there is no school or there is no proper college for further education in their area. Flexibility for rich people but compulsion for the poor. The reality is financial pressure is too high to exit and to incomplete the education. Moving to the 8th one, problem here is learning crisis already exists. Now before NEP, nearly 50% of the grade 5 can't read. ग्रेड 2 टेक्स्ट बुक, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ग्रेड 8 या 9 का बच्चा ग्रेड 4 या 5 के बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कर सकता है। Less than 1/3 can do basic division. Before changing policy, we did not fix this basic problem of the COVID and the basic gap of education. Reality is NEP focuses only on the future skills, but the foundation is weak. तो आगे आपने ऊपर की बिल्डिंग तो बहुत जगमगा दिया, ऊपर 19th फ्लोर रहेगा, 20th फ्लोर रहेगा, इंटरनेट रहेगा, लाइट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, बट द प्रॉब्लम इज नीचे का जो बेस है वही खोखला है। जेनजी का बेस जो है इतना खोखला है कि वो 8th 9th का जेनजी है, वो ग्रेड 3 4 का बेसिक मैथमेटिक्स, वर्ड प्रॉब्लम्स या लिटरेचर या इंग्लिश का भी एक पेज ठीक से नहीं पढ़ सकता विदाउट अ मिस्टेक। And that's the problem is rather than focusing on the future skills, the foundation itself is very weak, whether with literacy or with numeracy. Moving to the 9th part here, centralization versus federal structure. Now state argues NEP increase central government control over education. तो central तो चाहता ही है कि वो अपने हिंदी को ला दे, जैसे आपको पता ही है लैंग्वेज का इशू हुआ था और फिर बाद में इसके बाहर साउथ इंडिया के प्रयास से हिंदी को मेन भाषा के रूप में इनकार कर दिया गया, लिया नहीं गया। बट दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, गवर्नमेंट जो चाहता है, सेंट्रल चाहता है कि अपनी हिंदी को ज़बरदस्ती
स्टूडेंट्स के ऊपर थोपे। यार कभी स्टूडेंट्स को भी तो पूछ लीजिए, पूछना ज़रूरी है ना कि वो भाई नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ना भी चाहता है या नहीं चाहता, रीजनल लैंग्वेज पढ़ना चाहता है नहीं चाहता। एजुकेशन इन इंडिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट पावर, and the reality is conflict between central and the state government. The central want to punish the state government for its language, whereas the state government wants its own stake on the education. Uneven implementation across the state is the biggest problem in that impact. The last but not the least is employability. ठीक है, crisis still unsolved. Student lack practical skills for the job. Weak industrial connection persists. Now after doing your graduation also, most of the students are unable to speak English. Most of them are unable to write a letter, qualify for the interview, basic test, basic computer literacy, or even the practical skills related to IT. So they have to go for training, they have to go for internship. Unpaid internship I'm talking about. Unpaid internship for around 8 to 9 months where they get the hands-on activity and then go for the job, which is around 15 to 20,000, and that is the reality is practical skills are zero. Even in the schools also the problem lies in the school. 11th and 12th के बच्चों को जब कहा जाता है कि प्रैक्टिकल्स होंगे एंड 30 मार्क्स आर लाइक बोनस, आप भले प्रैक्टिकल करो या ना करो, वहाँ पे टीचर, वहाँ पे वो एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो वाइवा लेता है या लैब रिकॉर्ड देखता है, दे आर ऑल फिक्स्ड. 30 marks means it is just like giving them a chocolate. आपको 1000, 5000 साड़ी, कपड़ा, कुछ चॉकलेट्स या कुछ दे दिया, आपने हर एक बच्चे को 29 मार्क्स दे दिए एंड आप देख लो, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 10th का हो या 9th का हो या 11th का हो, किसी भी बच्चे को माइक्रोस्कोप तक चलाना नहीं आता. 40 स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, टोटल 40 स्टूडेंट्स होंगे और उस 40 स्टूडेंट के इसमें सिर्फ एक ही माइक्रोस्कोप है. अब बच्चा देखेगा क्या और करेगा क्या? एंड मार्क माई वर्ड्स, आउट ऑफ 30 मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल 28 से लेके 30 का रेंज सबको दिया गया होगा. जो बच्चा सबसे नालायक है, टीचर से आर्ग्यू करता है, उसको 28 है. जो बच्चा चापलूसी कर रहा है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है. गर्ल्स तो 30 चेहरा देख के ही दे देता है एग्जामिनर, 30 ऑफ द 30, बस ये दैट इज द रियलिटी. 30 का 30 उसको ऐसे ही दे देंगे, वो कुछ बोलेंगे भी नहीं. And nobody wants to argue also, and that's the reality. Students lack the practical skills. Degrees are increasing, the certifications are increasing, MSc, BSc, MA, BA, MPhil, these are only on papers, but the jobs are zero. इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हमारे राष्ट्रपति के नीचे जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि पकोड़ा बेचना भी इज अ जॉब. लिटरली इट्स अ जॉब. यानी कि आपने MSc PSc क्या सब कुछ कर लिया और आप बेच क्या रहे हैं रास्ते पे? एक पकोड़े, आइसक्रीम, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर और अ जॉब. रियलिटी हिज स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटिंग, दे आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएट, बट दे लैक कम्युनिकेशन, लैक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, दे लैक गाइडेंस. दैट्स द important thing, they lack guidance. So comparison with Germany, which has a strong vocational plus industrial integration, India still is weak with such kind of ecosystem. Now in the end, NEP 2020 is not a failure, but it is not a solution either. India has the largest youth population in the world. The policy will shape the future of 25 crore students after 10 to 20 years. Please remember, this NEP will be there for next 10 to 15 years, that is 2 decades, and this is going to shape the future of the Gen Z. But here is the real question: will the government invest enough amount of money on education? Will equality be ensured? And the third one is, will education become a privilege for only the rich and filthy people, and it will not be now a right? Because a nation is not built by policies, it is built by classrooms. I hope these 3 questions are there. If you have answers for such kind of questions, please put it in the comment box. I'll be helpful. I'll be really helpful that you have made till this end of this video. And क्या कहूँ मैं अभी by the end of this. If you have any answers, queries related to NEP, please put it in the chat box.
If you are new to this channel, please subscribe the button. If you have liked this video, please like and share with your friends. This is IGCSE Sudarshan Studio, where we don't follow education trends, we question them. This is your host Sudarshan. See you in the next video. Till then, take a very good care of yourself and your friends and family. Remember to respect your family members and take care of them. Till then, see you in the next video. If you have any queries, you can put on the zoology_sudarshan@gmail.com or put it your queries in the chat box. Right? See you in the next video. Take care and bye. Love you guys.